महकमे मौसमियात ने शहर में मज़ीद 12 घंटों तक बारिश की पेश कयासी की है। GHMC ने मज़ीद 12 घंटे तक चौकस रहने का आवाम को मशवरा दिया है। साथ ही GHMC ने इंतबा देते हुए कहा कि आवाम सफ़र से गुरेज करें, बरखी के पोल्स, दरख्तों के नीचे, नालों पर ना ठहरें। मानसून और DRF की टीमें बारिश के साथ ही सरगर्म हो गई हैं। GHMC हुदूद में 93 मानसून टीमें सरगर्म हैं। 14 इमरजेंसी टीमें भी काम कर रही हैं। इसी दौरान हुसैन सागर लबरेज हो गया है। इसके पानी का अखराज शुरू हो गया है। वज़ीर IT तारक रामाराव ने आज 3 प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। हुकूमत तेलंगाना ने इंटेल इंडिया हैदराबाद पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के इश्तराक से 2020 में मसनवी जहानत के रिसर्च सेंटर का हैदराबाद में क़याम अमल में लाया था। इस सेंटर के ज़रिए निगहदाश्त सेहत और स्मार्ट मोबिलिटी में दरपेश चैलेंजेस से निपटा जा सकता है। इस मरकज़ का मकसद तहक़ीक़ के साथ साथ असरी मसनवी जहानत को मज़ीद फ़रोग़ देना है। I could hear the pain in your voice when you said we are self-sustaining. And I could also hear the pain when you said the government only gave me land, nothing else. I promise you one thing, he was just whispering in my ear that he needs some support for quantum computing labs that he's setting up. We will support you fully. I will assure you. I will ensure that you get that money that you require to do a nice quantum computing facility right here. And when Nivriti was mentioning that ये government है, धीरे होता है काम, she was talking about Karnataka government, not us. Trust me, that's the government, that's the city that she lives in. So she was talking about them, not us, right? हाँ, सही. Because I also was listening in very carefully when she said road safety and all. She said Nagpur में roads ठीक है, Bangalore में worse है. She didn't mention Hyderabad, so I'm guessing we are somewhere in between. Right, Nivriti? Somewhere in between, pakka. So all in all, I think what I really liked about what was mentioned earlier is how technology can be used, leveraged to save lives. Essentially, that's what it's about. I mean, save lives, improving standards of living, improving our urban infrastructure, improving our road safety, ensuring that we do things right. I mean, ensuring governments improve their standards of functioning, so to speak. And as we all know, Gartner's 2022 CEO survey also indicates that AI is the top priority for business leaders for the third year in a row. In fact, back in 2020, when government of Telangana had declared 2020 as a year of AI, little did we know that COVID was lurking around the corner. But we had a very ambitious agenda. But nevertheless, in fact, we went through the whole year doing multiple AI events, and Intel was, of course, a key part of many of those events. So AI and how it can be leveraged for the benefit of each and every person in the society. It could be a farmer, it could be a technologist, it could be a doctor, it could be somebody else. Everybody, in fact, can use AI, and in fact, COVID has also shown us that AI and the power of AI and how it can really help even the governments is something that we have truly appreciated over the last couple of years. Since AI acts as a new factor of production, Niti Aayog estimates that AI is expected to raise India's annual GVA growth rate by 1.3%, resulting in an addition of almost $957 billion to India's economy by 2035, which is 15% higher gross value added, which is GVA is obviously, as many of you would know. वज़ीर सिविल सप्लाईज़ गंगुला कमलाकर ने BJP के रियासती सदर बंडी संजय के खामोश एहतजाज पर शदीद तनकीद की। उन्होंने BJP की जानिब से वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के लिए लगाई गई कुर्सी पर तंज करते हुए कहा कि पहले ये कुर्सी वज़ीर आज़म मोदी के लिए लगाई जाए, जिन्होंने कई इंतखाबी वादे किए लेकिन तमाम इंतखाबी वादों को फरामोश कर दिया। उन्होंने पूछा कि क्या हर एक के बैंक खाते में 15 लाख रुपए आए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पकवान गैस सिलेंडर्स की कीमतों में गैर मामूली इजाफे से घरेलू ख़वातीन को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 100% సమస్యలు పరిష్కారం అయిపోతాయి. అది
మరి ఆ సమస్యలు ధరణి సమస్య రెవెన్యూ సమస్యలు మేడం ధరణి సమస్యలు రెవెన్యూ సమస్యలు సాల్వ్ చేసేది కేసీఆర్ గారు చేస్తారా లేకుంటే వచ్చి మోదీ చేస్తాడా? చేసేది మా ప్రభుత్వమే కదా. ఇంత పెద్ద ఎత్తున జరుగుతున్నది ఒక 1% కూడా అది కూడా కంప్లీట్ చేద్దాము, రెవెన్యూ సదస్సులు మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోతాయని అనుకున్నాం. సరే వర్షాకాలం వల్ల మన రెవెన్యూ కలెక్టర్ ఒకవైపు వెళ్ళడము వీళ్ళు ఒకవైపు వెళ్ళడం చెప్పేసి కొన్ని రోజులు పోస్ట్ పోన్ ఇష్యూ డెఫినెట్గా దాని తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా టోటల్గా రెవెన్యూ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయింది. ఇది ఒక వైపు. రెండోది ఎందుకోసం కుర్చీ చేసావు? కుర్చీ వేయడం అనేది నిజంగా నేను కుర్చీ వేసి మౌన దీక్ష చేయాలనుకుంటే నేను కూడా నీ ఎప్పుడు వస్తాను. ఎక్కడికి? మోదీ గారి దగ్గరికి వెళ్దాం. మోదీ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మోదీ గారి ఆఫీస్ ముందట కుర్చీ వేసుకుందాం. నీతో పాటు నేను వస్తాను. కొన్ని ప్రశ్నలు సంధానిద్దాం, కొన్ని ప్రశ్నలు చెప్దాం. నెంబర్ 1, అయ్యా మోడీ గారు 15 లక్షలు అకౌంట్లో వేస్తా అన్నావు. 15 లక్షలు అకౌంట్లో వేస్తా అన్నావు, ప్రతి అకౌంట్లో, జన్ధన్ అకౌంట్లో. నేను ఏ బ్యాంక్ వాడిపోయి నీకు కుర్చీ చేయాలి? ఏ ఏటీఎం దగ్గరకు పోయి కుర్చీ నా పక్కకు నీకు మంచి పెద్ద కుర్చీ చేస్తా. అలా వేయాలనుకుంటే దేశంలో ఉన్న అన్ని ఏటీఎం సెంటర్ల ముందట, అన్ని బ్యాంకుల ముందట నీ కుర్చీ కనబడుతుంది. शहर हैदराबाद के नवाही इलाकों कापरा, एसआर नगर, ECIL चौराहा, कुशाईगुड़ा, HB कॉलोनी, चरलापल्ली, दुमईगुड़ा, नाचारम, रामपल्ली, कीसराय के इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में कई नशीबी इलाकों में पानी दाखिल होने की शिकायत मिली हैं और आवाम को काफ़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। शहर के दूसरे इलाकों में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बर्क़ी शॉक लगने से 3 भैंसें हलाक हो गईं। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में गंडीपेट मंडल में बर्क़ी शॉक लगने से इन भैंसों की मौत हो गई। ये भैंसें यादैया यादव की हैं। इत्तला मिलते ही महकमे बर्क़ी और पुलिस के अहदेदार वहां पहुंच गए, जिन्होंने सूरत हाल का जायज़ा लिया। मारेडपल्ली के साबिक इंस्पेक्टर नागेश्वर राव को 14 दिनों के लिए जज ने अदालती तहवील में दे दिया है। वनस्थलीपुरम पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। अगवा, इस्मत रेजी, धमकाने और आर्म्स एक्ट के तहत CI के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तिब्बी मायने के बाद उन्हें जज के सामने पेश किया गया। जज ने उन्हें 14 दिनों के लिए अदालती तहवील में दे दिया। जॉइंट ट्रैफिक पुलिस और DCP ट्रैफिक ने GHMC के अहदेदारों के साथ रसूलपुरा नाले के कामों का मुआयना किया, जो मुकम्मल हो गया है। ACP ट्रैफिक ज्ञानेंद्र रेड्डी ने कहा कि इस नाले का काम कई दिनों से जारी था। इसकी तकमील से आवाम को सहूलत होगी। सड़क पर जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर ज़ईफ़ शख्स को रज़ाकाराना तंजीम और पुलिस ने मिलकर घर वालों के हवाले किया। इस शख्स की उम्र तकरीबन 60 साल है। चंद्रानी गुट्टा के अवाम ने सदर नारी निकेतन एसोसिएशन सफ़िया माही और नायब सदर मोहम्मद हैदर को इस बात की इत्तला दी। ये दोनों चंद्रानी गुट्टा पुलिस की टीम के साथ वहां पहुंचे और इस शख्स को इसके घर वालों के हवाले किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं सोशल वर्कर सफिया माई, NGO नारी निकेतन एसोसिएशन प्रेसिडेंट। आज हम लोग 3 दिन से चंद्रानी गुट्टा इलाके से फोन आ रहा था कि एक बुजुर्ग यहाँ पर बहुत बुरी हालत में है बोल के, तो हम लोग यहाँ चंद्रायन गुट्टा इंडियन ऑयल के ऑपोजिट आके चंद्रायन गुट्टा PS वर्मा सर को कॉल करे। एक फोन पे चंद्रा वर्मा सर रेस्पॉन्स दिए और उनकी टीम सईद भाई, साई किरण सर, दोनों हम लोग का पूरा उनको उनके घर पहुंचाए तक पूरा सपोर्ट करे। और हम ये पुलिस वाले फ्रेंडली पुलिस जो बोलते हैं यहाँ पर, मालूम हो रहा है कि ये लोग कितनी क्या कुछ करके ये लोग इनके घर वालों तक पहुंचाए। और शुक्रगुजार है वर्मा सर के, ऐसे पुलिस वालों के रहते कभी कोई क्राइम नहीं हो सकता, कभी कोई रोड पे बेमौत नहीं मर सकता। क्योंकि वो बंदा 3 दिन से उसके जिस्म पे कपड़ा नहीं था, आके लोग उसको कपड़े पहना के, हमारी टीम के सोशल वर्कर हैदर मेमन भी इसमें हमारे साथ थे, ये लोग पूरा उनको उनके घर तक पहुंचाए। और जो भी हमको देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे कोई दिखे तो देखिए, जानवर अगर एक कुछ जख्मी होता तो पूरे जानवर इकट्ठा हो जाते। एक इंसान 3 दिन से यहाँ पर बुरी हालत में पड़े हुआ है, कोई उसको रोक के देखने वाले नहीं थे। आज पुलिस वालों के सपोर्ट से
सईद भाई और साई किरण सर के सपोर्ट से हम लोग उनको उनके घर तक पहुंचाए। हम आप वर्मा सर के भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है। अल्लाह हाफिज। नेशनल पुलिस एकेडमी के सामने राघवेंद्र नगर कॉलोनी में बारिश के दौरान अचानक एक दरख्त गिर पड़ा, जिसके नतीजे में 2 बाइक्स और एक कार को नुकसान पहुंचा। वाजिद अली मिर्ज़ा रिटायर्ड प्रोफेसर ने बताया कि इस सिलसिले में जीएचएमसी के अहदेदारों की जानिब से कोई मदद नहीं की गई है। अलबत्ता महकमा बरक़ी के अहदेदार फौरी इस वाक़े के बाद वहां पहुंच गए। वाजिद अली मिर्जा साहब। वाजिद अली मिर्जा, मैं यूनिवर्सिटी का रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ जी ये आज बारिश 4-5 दिन से जो पड़ी है, झाड़ा बिल्कुल, ये कॉक ट्री बहुत वीक रहता है झाड़ उसका जी। इसके रूट्स, मैं तो एग्रीकल्चर का हूँ ना, तो वो खतरा ही रहता। हम लोग बोल रहे हैं कई ज़माने से ये पोल बिल्कुल देखे ना अभी जो गिरा, ये पोल भी जो है सो कभी गिरने खरीदा, खुदा न खास्ता बच्चे खेलते रहते, गाड़ियाँ रहते, आज वही हुआ। अभी नकली के वक्त नमाज पढ़ने जा रहा था, आवाज़ आई जोर की, बाहर आके देखे तो मेरी गाड़ी पे पूरा वो झाड़ आके गिरा। कॉक ट्री लंबा झाड़ था, बहुत वीक रहता उसकी जड़ें, उसकी वजह से ये पूरा डैमेज हो गया। गाड़ी भी नुकसान हुआ, 1-2 स्कूटर्स भी, मेरे ड्राइवर के स्कूटर और एक बेचारा उन्हें आया था, उसकी गाड़ी दोनों को निकाले काट के झाड़। सर जो आपकी गाड़ी डैमेज हुई है जी, ये गाड़ी सुजुकी की गाड़ी है? ये K10 बोलते हैं इसको, सुजुकी से जी K10 बोलते हैं। आप लोग विधायक सर को फोन करे थे ये होने के बाद? जी हाँ, वो लोग फौरन यही है, बाजू है ना इलेक्ट्रिसिटी वाले। जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी वाले जीएचएमसी कोई नहीं है? नहीं किसी को। इलेक्ट्रिसिटी वाले कोई आपकी मदद न करे, खाली इलेक्ट्रिसिटी और आप और हाँ, इलेक्ट्रिसिटी वाले आ गए फौरन, वो बंद कर देना पड़ता ना, शॉर्ट सर्किट हो जाता, और फिर पूरा ये घरों की लाइट चली जाती है, वो पूरा वायर पूरा खींचना, नए पोल डालना, काफ़ी डैमेज हुआ भाई। ये इधर देखे ना आप, जो गिरा है झाड़ पूरा उसके डैमेज होगा। ये मानसून के चलते जी हाँ आते ही रहता, रोजाना आते रहता। जीएचएमसी को आप लोग कभी कंप्लेन करे थे कि ये नहीं कभी नहीं, जीएचएमसी को नहीं करे कभी भी। अब हमारी सोसाइटी है, उस सोसाइटी के लोग करना चाहिए। सेक्रेटरी प्रेसिडेंट से बात करूंगा अभी, और वो लोगों को बोलूँगा करना। आए दिन वाक़े होते, बच्चे खेलते रहते, खुदा न खास्ता जानी नुकसान हो गया तो नहीं हुआ ना, जाने तो गाड़ी बना देंगे, इंश्योरेंस देंगे, कुछ भी रहेंगी, मगर बच्चे खेलते रहते छोटे, वो डेंजरस रहता है। जी शुक्रिया बेटा। शहर हैदराबाद में मौसमी हालात के पेश नज़र संजीवैया पार्क में लगाया गया तिरंगा आरजी तौर पर नीचे कर लिया गया है। इस बात का ऐलान अपने ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट से करते हुए स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमे बल्दी नज़्म-ओ-नस्क तेलंगाना अरविंद कुमार ने कहा कि शदीद तूफ़ानी हवाओं की वजह से इस तिरंगे को नुकसान पहुँचने का इम्कान है, इसीलिए इसको आरजी तौर पर नीचे कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि तूफ़ानी हवाओं की शिद्दत और इस तिरंगे की ऊंचाई की वजह से इस परचम को नुकसान पहुंचने का इम्कान है, इसीलिए आर्जी तौर पर इसको नुकसान से बचाने के लिए ऐसा किया गया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही तूफ़ानी हवाओं की शिद्दत में कमी होगी, इसको ऊंचा। भद्राचलम एजेंसी इलाकों में आवाम को कदरे राहत नसीब हुई है। गुज़िश्ता 3 दिनों से सैलाब की सूरत हाल बनी हुई थी। मंगल की सुबह भद्राचलम में पानी की सतह में कमी हुई। खतरे का निशान पीर की शाम लगाया गया था, ताहम मंगल की सुबह से पानी की सतह में बतदरीज कमी के आसार नजर आए, जिसके बाद अहदेदारों ने तीसरे खतरे के निशान से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। भद्राद्री कोत्तागुड़म ज़िले के 85 मवाज़ात पानी में महसूर हो गए हैं और कई एकड़ पर फैली फसलों को नुकसान हुआ है। तेलंगाना भर में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। आज भी बाज़ इलाकों में शदीद से शदीद तरीन बारिश की महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने पेश कयासी की है। महकमे मौसमियात ने 8 अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद सरकारी मिशनरी चौकस हो गई है। अहदेदारों ने आवाम से कहा है कि वो सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक ही घरों से बाहर निकलें। नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, जनगांव, यादाद्री, सिद्दीपेट, संगारेड्डी, मेदक में शदीद से शदीद तरीन बारिश की पेश कयासी की गई है। इन अजला के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बाकी अजला में शदीद बारिश की पेश कयासी की गई है। हिंदुस्तानी निजाद ऋषि सुनक के जल्द ही बरतानिया के वज़ीर आज़म बनने के आसार हैं। वो बोरिस जॉनसन के जानशीन हो सकते हैं। कौन है ऋषि सुनक? ऋषि सुनक की पैदाइश बरतानिया में हुई। उनके वालिदैन का ताल्लुक़ तिब के शोबे से था। वो आला तरीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं। उनकी शादी इन्फोसिस के माविन बानी नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से हुई। इस जोड़े को 2 लड़कियां हैं। ऋषि पहली मरतबा 2015 में रिचमंड यॉर्कशायर से रुकन पार्लियामेंट बने। जल्द ही वो तरक्की करते चले गए। वो बोरिस जॉनसन के हामियों में से एक हैं। फरवरी 2020 में उन्होंने तारीख रकम की क्योंकि वो बरतानिया के काबीनी ओहदे तक पहुंच गए।
वबा के दौरान उन्होंने शोहरत हासिल की थी। उन्हें ये शोहरत ताजिरों और मुलाजमीन की मदद के लिए माशी पैकेजेस की फराहमी पर मिली। उनकी मकबूलियत में उस वक्त गिरावट हुई जब पार्टी गेट स्कैंडल सामने आया। कोविड के कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए सरकारी दफातर में पार्टियों का एहतमाम करने पर उन पर लंदन पुलिस ने जुर्माना भी आयद किया था। उत्तर प्रदेश से असदुद्दीन अवैसी के लिए बुरी खबर है। प्रयागराज में असदुद्दीन अवैसी की पार्टी AIMIM के कई कारकुन आज यानी मंगल को बड़े पैमाने पर इस्तीफा देंगे। बताया जा रहा है कि प्रयागराज में ज़िला और सिटी कमेटी से वाबस्ता AIMIM के तमाम कारकुन आज पार्टी छोड़ देंगे। 10 जून को प्रयागराज में नमाज जुम्मा के बाद हुए तशद्दुद में रियासती क़यादत की तरफ से मुदाखिलत न करने की वजह से कारकुनों में नाराज़गी है, जिसकी वजह से ये सभी आज इस्तीफ़ा दे देंगे। पहलगाम का रवायती रास्ता अमरनाथ सान्हे के 2 दिन बाद पीर की सुबह दोबारा शुरू किया गया। यात्रा के रास्ते शीशनाग और पंजतरनी में फंसे हुए सैकड़ों यात्रियों को भी मुक़द्दस गार में भेजा गया। बालटाल से सफ़र को फ़िलहाल रोक दिया गया है, जो साफ़ मौसम की सूरत में आज मंगल को जारी किया जा सकता है। इस दरमियान 4026 यात्रियों के ग्रुप को बेस कैंप भगवती नगर जम्मू से सख्त सिक्योरिटी के दरमियान हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को आल्ट न्यूज़ के मामन बानी मोहम्मद जुबैर की अबूरी ज़मानत में तोसी कर दी। जुबैर सीतापुर में मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के FIR के सिलसिले में मुलजिम है। उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने जस्टिस DY चंद्रा और जस्टिस AS बोपन्ना ने कहा कि वो मोहम्मद जुबैर की जानिब से सीतापुर में दर्ज FIR को मनसूख करने के लिए दायर दरख्वास्त के ख़िलाफ़ हल्फनामा दाखिल करना चाहते हैं। इसके बाद बेंच ने सहाफ़ी जुबैर की दरख्वास्त पर 7 सितंबर को हतमी समाअत करने की बात कही और उत्तर प्रदेश हुकूमत से कहा कि वो 4 हफ्तों के अंदर अपना जवाब दाखिल करे।